अच्छा बेटा, now we are doing 0580 paper 4 extended variant 2 May June 2024. The paper time is 2 hours 30 minutes, but we know from now onwards you're going to have a paper time as 2 hours. Total marks for this paper is 130 marks, but we know this from now onwards you're going to have the paper of 100 marks. Let's start with question number 1. It says a food drink is made using 1.5 liters of apple juice and 450 milliliters of mango juice. Write down the ratio of the apple juice and mango juice in its simplest form. अच्छा, कभी भी दो क्वांटिटीज का अगर आपने रेशियो निकालना है तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए. या तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो या तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो. तो देखो बेटा, मैं 1.5 लीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करूं, 1.5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000. तो ये बन जाएगा एप्पल जूस का रेशो 1500 मिलीलीटर और मैंगो जूस देगा 450 मिलीलीटर. सो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया. अब यहां पर either you cancel out with the 5. देखो 5 9s are 5 30s are. Now we have some more simplification. 3 is 9, 3 10s are 30 हो जाता है. ठीक है ना? So we're gonna have the answer of this as 10:3. Now in part B, it says 1 liter of fruit drink is shared between 3 cups. The amount of in the cups is in the ratio is 9 ratio 6 ratio 10. Calculate the number of milliliter in each cup. अब देखो फ्रूट ड्रिंक, अब देखो यहां पर वी हैव 1 लीटर ऑफ फ्रूट ड्रिंक. तो 1 लीटर मीन्स 1000 milliliter of fruit drink is shared between three cups. Number of milliliter in each cup. So what is the total ratio here? So total ratio is 9 plus 6 plus 10, which is 25. So 9 over 25 of 1000 milliliter, ये एक रेशियो, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक कप की. दूसरे कप का रेशियो कितना है? 6 over 25 मल्टीप्लाई बाय 1000. और तीसरे कप कितना है? 10 over 25 मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है. Now you're going to multiply these values. You'll get 9 over 25 multiplied by 1000, that is 360 milliliter ml. Then we have 6 over 25 multiplied by 1000, it is 240. Then we have 10 over 225 multiplied by 1000, that is 400. That is the amount that is shared between these cups. A shop buy bottles of the fruit drinks for $3.20 each. It sells them at a profit of 15%. Calculate the selling price of each bottle of fruit drink. So this is the profit loss problems. So he buys for $3.20 each and sell them at a profit of 15%. What is the selling price? That is the 100% price, $3.20. And after increment of 15% is going to be 115% price. The selling price, what is its value? It is X value. Selling price is again in which the initial amount and the profit is included. So in this 115%, initial amount percentage and the profit percentage is included. 115%. Increase in percentage problem ho gaya. I'm going to cross multiply it. I'll get 100x. 100 multiplied by x. 3.20 multiplied by 115.
It is 3.68. If he's going to sell it at $3.68, he'll get the 15% profit. Part D, it says the number of bottles of fruit drinks sold has grown exponentially at a constant rate of 2.5% per year. 5 years ago, the shop sold 16620 bottles. Calculate number of bottles sold this year. So it was 5 years ago. It was its initial value 1660 to 620. We're going to use a compound interest formula for this. A goes to P into 1 plus R over 100 power N. Initial amount value is 1660, 620. Rate is 2.5 divided by 100. After 5 years, that is now, after 5 years, that is now value. This A value. After increasing exponentially for 5 years, what is the value right now? It is 16,620 multiplied by 1 plus 2.5 divided by 100 power 5. It is 188.04.00. So obviously it is going to be 18804. So today, this A is going to sell 18804 bottles. Now for part E, it says the bottle of juice are 18.5 centimeter tall. Correct to the nearest milliliter. Correct to the nearest milliliter. They are stored on shelves. The distance between the shelves is 23 centimeter. Correct to nearest centimeter. Calculate the lower bound of the D distance between the top of the bottle and the shell above it. See, if I ask you to find out this D value, you are obviously going to subtract this 23 minus 18.5. Right? If I ask you to find out the distance between the top of the bottle and the shelf, what you are going to do? You're going to minus 23 minus 18.5. Right? But they need the lower bound of this value. So if you need the lower bound of any value, that is calculated by subtraction. So you will take the lower bound of the first value and the upper bound of the second value. ठीक है ना? अगर आपको अपने रिजल्टेंट की लोअर बाउंड वैल्यू चाहिए तो बेटा फर्स्ट वैल्यू का आप लोअर बाउंड लेंगे और सेकंड वैल्यू का अपर बाउंड लेंगे. सो 23 का 23 सेंटीमीटर, that is correct to the nearest centimeter. Nearest centimeter मतलब 1 centimeter. So I'm going to divide 1 by 2, which is 0.5. If I add 0.5, I'll get upper bound. If I subtract 0.5, I'll get lower bound. So 23 ka lower bound, it is going to be 22.5. But then we have 18.5. 18.5. We need the upper bound of this. We need the upper bound of this. And it is correct to the nearest millimeter. We need to make sure that both of these units should be same. Both of these units should be same. It is millimeter, it is centimeter. So 1 millimeter is equal to 0.1 centimeter. So I'm going to divide this 0.1 by 2. You get 0.05. So देखो बेटा, if you want the upper bound, 18.5 में बेटा, if you add 0.05, you'll get the upper bound. If you subtract 0.05, you get the lower bound.
So I just need the upper bound here. 18.55. After subtraction, 22.5 minus 18.55, you get 3.95, the lower bound of the D value. Now in question number 2, part A, it says, the diagram shows a straight line intersecting two parallel lines. Find the value of A and the value of B. See, the value of A is very easy. Angle in a straight line, 180 minus 38. So 180 minus 38 is 142. And these are alternate angles. Z बन रहा है यहां पर देखो. So B value is also going to be 142. So we don't have to write the reason, just write down 142 and 142. Calculate the interior angle of the regular 12-sided polygon. So interior angle formula is n minus 2 multiplied by 180 divided by n. Since it is 12-sided, so 12 minus 2 multiplied by 180 divided by 12. 12 minus 2 is 10. 10 multiplied by 180 divided by 2 is, divided by 12 is 150. Each interior angle is equal to 150 degree. Then in part C, they are saying the diagram shows the circle center O. The points M, N, and P lie on the circumference of the circle. A, M, B is a tangent to the circle at M. A, M, B is tangent to the circle at M. Find the value of F and the value of G. So in order to find out the value of F and G, see, they are saying this is the radius and this is the tangent. Tangent and radius has the angle 90 degree. So 90 minus 56 will give you this angle. Which is 34. Now since it is an isosceles triangle, दोनों radius हैं, so obviously G value is also going to be 34. So your G value is going to be 34. As far as F is concerned, see, this 56 is the angle with the chord and the tangent at M. So if you want to make a direct connection with the alternate segment property, तो देखो डायरेक्ट ये है कि this is the chord and the tangent angle is 56. M पे जो बेटा हमारे पास tangent और chord बन रहे हैं, बेटा you are making a triangle over here. This angle is on the right side. You move inside the triangle, you go right side or left side opposite to the M point. The left side angle is F, which is equal to this 56. F is equal to 56 with the property called alternate segment property. And there is one more solution कि बेटा अगर आपने for example ये angle निकाल लिया 180 minus 34 which is going to be 112. अगर आपने ये एंगल निकाल लिया 112 तो बेटा इसका हाफ F हो जाएगा. F is going to be half of this. Angle at circumference is half the angle at center. (56). For the D part, it says the diagram shows the cyclic quadrilateral. Find the value of K. So this one is a cyclic quadrilateral, and by this I can find out this angle over here because they have made this line to make a triangle.
So 180 minus 24 minus 27, it is 129, and since it is cyclic quadrilateral, opposite angle का sum 180 degree होता है. So it is 51. Now this one over here, they have given the table of 40 students who travel to school. They have got frequency 0 to 10 minutes. There are 3 students, 10 to 15 minutes. There are 18 students, and 25 to 40 minutes. There are 15 students, 40 to 60 minutes. There are 4 students who take this time. Estimate the mean. Since why they are saying estimate the mean? See, we need to find out the mid value. That is 5 here. That is 17.5 here. You're going to add these two values, like 10 plus 25 divided by 2, 17.5, the mid value. Then 25 plus 40 divided by 2, you'll get the mid value, that is 32.5. Then 40 plus 60 divided by 2, that is 50. जिसका डायरेक्टली आ रहा है दैट्स टोटली फाइन, बट इसका थोड़ा भी मुश्किल हो रहा है, थोड़ा भी डाउट हो रहा है ना, तो कैलकुलेट कर लें. अभी इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है. देन दिस इज योर एक्स, दिस इज योर फाइंड एफ एक्स. तो 5 into 3, 15, 17.5 into 18, 315, 32.5 multiplied by 15, 487.5, 50 divided by 4 is 200. Now the formula for the mean is sum of fx divided by sum of f. 15 plus 315 plus 487.5 plus 200 divided by sum of f, which is obviously 14 का sum 40 होगा ना. So 15 plus 315 plus 487 plus 487.5 divided by 40, 25.4375. Up to 3 in figure of 25.4 minutes is going to be the estimate. Achha, in this question, there's one thing which I want to highlight. देखो, I'm getting the answer 24.4375 and that's it. There is no extra digit after 5. ये यहाँ पर terminate हो रहा है. So I would rather suggest, according to their examiner point of view, कि don't convert into 3 in figure here. Just write down 24.4375 as your final answer. 25 point. Don't just convert into, if you're getting any exact answer, जो कि somewhere around, अगर 4 to 5 सिग्न फिगर में, इसको हमने खैर 3 सिग्न फिगर 6 सिग्न फिगर कह लें आप, कि द आंसर इज एग्जैक्ट टू अ 6 सिग्न फिगर, तो उसको राउंड ऑफ ना करें. ऑल्दो इन द सिलेबस इट इज मेंशन दैट द आंसर दैट आर एग्जैक्ट टू 4 or 5 significant figure should not be rounded unless the question state otherwise. So question hasn't said anything कि इसको राउंड ऑफ करो, तो मैं इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा. ये ऑलरेडी 6 इन फिगर में डायरेक्टली आ रहा है, ऑल्दो 5 उसने लिखा हुआ है इन द सिलेबस, बट ये 6 में आ रहा है, तो उसको 6 में एग्जैक्ट आंसर लिख दिया मैंने, क्योंकि दे से दिस कि व्हेन आंसर आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज दे शुड बी गिवन टू 3 इन फिगर, बट दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू. ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो कोई नॉन डेसिमल फॉर्म में है तो ये चलते जा रही नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है. दिस इज एक्चुअली द एग्जैक्ट वैल्यू है, द एस्टिमेटेड एग्जैक्ट वैल्यू. तो इसको हम डायरेक्टली ये लिख देंगे, ज्यादा बेटर है. दे आर सेइंग फाइंड द ड्रॉ द हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम के लिए बेटा on the y-axis is frequency density. Why is frequency density? Because
आपके पास बेटा यहां पर लेट मी जस्ट क्रिएट दिस न्यू पेज। देखो यहां पर द विड्थ आर नॉट इक्वल। 10 minus 0 is 10, 25 minus 10 is 15, 40 minus 25 is 15, and then 60 minus 40 is 20. Width are not equal. So you have to find frequency density, which is frequency divided by width. So 3 divided by 10 is 0.3, 18 divided by 15 is 1.2, 15 divided by 15 is 1, 4 divided by 20 is 0.2. So you got the frequency densities over here. Now you have to plot the histogram for this. You need to make sure कि आपको पता हो कि one tiny small box is equal to how many values. So y-axis पर you can see after every 1 unit difference there are 10 boxes, 0.1 हो गया each tiny small box. और x-axis में after every 10 boxes there are a difference of 10. तो each tiny small box is equal to 1 unit. तो देखो 0 से लेकर 10 तक you need to plot 0.3. तो 0.3 would be over here. Then 10 to 25 is 1.2. Sorry, it is 25. 25 will be the midway. Then 25 to 40 is 1. Then 40 to 60 is 0.2. This is going to be the histogram for this chapter, for this question. Now, 2 students are selected at random from the 40 students. Calculate the probability that one student takes more than 25 minutes and the other student takes 10 minutes or less to travel to school. Now, these are 2 students that you need to select it, combined event question out of 40 students. They haven't said anything about the with replacement, without replacement case. But when you are selecting 2 students, obviously it is going to be without replacement case. You won't select any 2 same students, right? So although they haven't mentioned it, but this is a without replacement question. So you have to find out 2 students who take more than 25 minutes. One take more than 25 minutes. Another student takes 10 minutes or less than equals to 25 minutes. So the first student who took more than 25 less than equals to 10 minutes, sorry. So the student who took more than 25 minutes is 15 plus 4, 19 students. So 19 students in the favor of more than 25 and less than equal to 10 minutes. There are 3 students in favor of this. So the student who took more than 25 minutes, the probability of that student is 19 by 40. Multiply by the student who took less than or equals to 10 minutes, the probability of that student is 3 by 39. But it could be a possibility. We're going to discuss both of these possibilities here. It could be a possibility कि बेटा आपके पास पहला बच्चा जो हो वो less than equal to 10 minutes वाला हो, and the second student
You can have this possibility as well. So you can have 3 by 40. The first student would be less than equal to 10 minutes. And the second student will be more than 25 minutes. So 19 by 39. We're going to add these answers. या फिर आप एक ही आंसर को लिखकर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते. But this whole thing, some of the concept here. So answer is 19 by 260 after simplification. I'm going to add these two answers. Okay, beta, in question number 2, 3 part B, they're asking you, this is some information about the time that 200 people took to fill in a questionnaire. The longest time was 30 minutes. The median time was 22 minutes. The lower quartile was 8 minutes. The interquartile range was 19 minutes. And the range was 25 minutes. Although previously in part A, there was a table of 40 students which shows how much they took time to travel to school. Now we have 200 students. And they have not given us the time here, the whole table here, but they have given us the time in terms of longest time, the one who took the longest time, the median time to travel to school, low quartile, interquartile range, the range. Now, what is the first thing they are asking you is the shortest time taken. So see, range is something that is a difference between maximum and the minimum time. So range is 25. Maximum, the longest time taken by anyone was 30 minutes. What will be the minimum time? -30 minus 25, which is 5 minutes. Five minutes is the shortest time taken by any of the people over here. Okay, this one is a different. It is a questionnaire time, which is something for 200 people, not the one who travel to school. Okay, then we have to make a box and whisker diagram. Box and whisker diagram, there are 5 points that is needed for 0580 people. Again, box and whisker is no longer part of your syllabus. This is not a part of the syllabus. Let's move on further. Josh says that 101 of the 200 people took more than 22 minutes to fill the questionnaire. अब देखो यहां पर median is 22 minutes. And if I want to find out the median value, the median percent, it is not 101. The median is not a 200 people. We got 200 people total. तो देखो median हमारे पास कितना हो जाएगा? Median की position 100 हो जाएगी. So median position is 100.
So this is the explanation कि median is 22, which is the 100th position. So therefore, he is wrong. तो देखो ये wrong हुआ ना, क्योंकि 101 of the 200 people took more than 22 minutes. जबकि according to the data, the median value is 22 minutes, जो कि 100 पोजीशन पर आ रही है, 101 पे नहीं आ रही. तो मीडियन टाइम वाज 22 मिनट्स. इसका मतलब अगर यहाँ पर 100 लिखा हुआ होता, 100 ऑफ द 200 पीपल मोर देन 22 मिनट्स टू फिल द क्वेश्चनर, तो बात सही होती फिर. और यू कैन से median is 22, which is 50% of the people. And 101 is more than 50%. That is why he is wrong. Now moving on to question number 4, part 8 says the diagram shows a tank in the shape of half cylinder of radius 12 centimeter and the length 1 meter. The tank is fixed horizontally and is immediately filled with water. Calculate the volume of the water in the tank. Give your answer correct to the nearest 10 centimeter cube. See, if you want to find out the volume of the water in the tank, so since it has a constant cross section area, what is in the front, it goes backward till the same. देखो ये पूरा backward same constant cross section area होता है backward तक. And this one is the half of the cylinder. This is going to be the half. This is going to be a semicircle then. Semicircle area multiplied by length. Make sure that you are putting the values in centimeter. Radius is 12. Length is 1 meter. 1 meter means 100 centimeter. It is 22619.46 centimeter cube. Correct to the nearest 10 centimeter cube आंसर देना है मुझे. तो देखो 10th वाली पोजीशन कौन सी है? This is the position for 10th position. 22620 centimeter cube is going to be. Now this is very important कि उसने जिस पॉइंट पे बोला हुआ है ना, आपने राउंड ऑफ करना है. आपने उस पॉइंट पे राउंड ऑफ करना है, उसके हिसाब से राउंड ऑफ करना है. सिटी सिग्न फिगर में राउंड ऑफ नहीं करना. Now for part 2, it says the water is removed from the tank until the level of the water is 6 centimeter below the top of the tank. The diagram shows the cross section of the tank. Calculate the volume of the water now in the tank. See, पानी पहले पूरा भरा हुआ होगा. It was completely filled. Now it is not completely filled. It's gone to 6 centimeter below
The level of the water from the top of the tank. So now we want to find out the area of this water. So again, पहले भी ये करा था क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ. अभी भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ. Now what is this cross section area? What is this cross section area? And how do we find it out? देखो ये तो हमारे पास सेमी सर्कल है. The main idea was how to find this cross section area. Since it is a segment here, this is called segment. तो देखो सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल को एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ज्वाइन करो. हाउ डू वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट? सेक्टर एरिया माइनस triangle area. Now, how do we find this whole sector area? First, देखो बेटा, in this question, the radius was 12. So obviously, this is 12 and this is 12. If you want to find out the angle, you have this right angle triangle here, which has got the hypotenuse 90 degree opposite 12 है और adjacent is 6. Tan theta opposite over cos theta adjacent over hypotenuse. So it is going to be cos inverse 6 over 12, cos inverse 1 by 2. You will get the angle 60 degree. तो बेटा ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 60 plus 60, 120 degree. तो सेक्टर एरिया इज थीटा अपॉन 360 मतलब पाया स्क्वायर. ट्राइंगल एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट. तो देखो theta that we know is 120 now. This complete angle, radius is 6. Sorry, radius is 12. This is the radius of the sector 12 minus half base into height. Triangle area. देखो you find out this whole base and you got the height 6 over here. First thing first, how I'm going to find out the base? देखो बेटा ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है. Let's just use opposite over hypotenuse. This is opposite x. Hypotenuse 12. This one is 60. 12 sin 60 is 6 root 3. क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, तो ये मिड पर होगा बेटा. फिर ये इफ दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एक्स, यानी 2 root 3 is going to have a base
of this triangle. So base is 12 root 3, not 2, 12 root 3. Height is 6. So now that you got the area of the set or area of the segment here, the cross section area, you just have to put everything in the calculator. So getting the area 88.44 26 centimeter square. Now since we got the area, हमें कैलकुलेट क्या करना था? हमें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना था सर. तो देखो क्रॉस सेक्शन एरिया multiply by the length of the cylinder was, half cylinder was 100 centimeter. Now if you round off, उसने मेंशन नहीं करा हुआ कितने फिगर में राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग जो जनरल राउंडिंग ऑफ होती है, जो 3 फिगर पे होती है, हम उसमें राउंड ऑफ सो कर लेते हैं. दैट इज 88.40, 3 फिगर में राउंड ऑफ कर दिया मैंने. Now it says a rectangular fish tank with length 42 centimeter and width 35 centimeters full of water. A stone lies in the bottom of the tank. When the stone is removed from the tank, the depth of the water decreases by 0.2 centimeter. The density of the stone is 2.2 grams per centimeter cube. Calculate the mass of the stone in the grams. देखो बेटा, आपके पास एक फिश टैंक है. It is a rectangular fish tank. Length is 42 and the width is 35 centimeter. It is full of water. They have not given us the height. The stone lies at the bottom of the tank. There is a stone at the bottom of the tank. When it is removed from the tank, the depth of the water decreases by 0.2 centimeter. It means your depth of the water would be decreased by 0.2 centimeter. This is the depth of the water which is decreased. They have given us the density of the stone, and density is equal to mass divided by volume. So density, which is 22.2, mass that we don't know here, and the volume that it has acquired was length into breadth into height 0.2. देखो जो उसने वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम को उसने एक्वायर करा हुआ था, कितना वॉल्यूम था? That was length into breadth into height. So we'll get the mass of the stone here. That is 646.8 grams. ठीक है ना? If someone wants to round it off, but क्योंकि exact value आ रही है तो इसको यही लेने देते हैं. Now in part C, they are asking you, the diagram shows the cuboid. Calculate the angle that AG makes with the base of the cuboid. This is AG. We need to find out the angle that it makes with the base. So we are going to make a base line that is AC. दोनों diagonals में कर रहे हैं हम लोग. And we have to calculate this angle. Because we have a right angle triangle here. If you can see, हमारे पास ये right angle triangle बन रहा है.
देखो मुझे ये एंगल मालूम करना है. We got the opposite length here. Do we know any other length? तो देखो मैं मालूम कर सकता हूं. I can find out the value of AC here because base तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है. तो AC square is equal to 8 square plus 12 square. So AC value is going to be 8 square plus 12 square. After taking square root, it is 4 root 13. Centimeter. So we got the opposite length. We got the adjacent length. So tan theta opposite over adjacent, which is 4 root 3. To take the inverse, you'll get the angle of always provide the answer in one decimal place for the angles. $65.20, 65.2 degree. So it was 13 here. I just wrote mistake. You're going to find out the angle tan theta opposite over adjacent, which is 4 root 13. Take the tan inverse. It is going to be 46.12. 46.1 degree is going to be a final answer. Now in question number 5, it says simplify. It is an indices question. Can I write 5 as 25 as 5 square? Yes. Then we have power 3 by 2 on both of the terms. 5 square की power 3 by 2. X power 6 की power 3 by 2. Powers are going to be cancelled. ये देखो 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और 2 1 जा 2 3 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगी, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं. सो यू गॉट 5 स्क्वायर एक्स क्यूब की पावर 3, 25x power 9 is going to be your final answer. These are the first 5 terms of the sequence in part B, and they are asking for the nth term. See, this one is a exponential sequence. 1/6 को मल्टीप्लाई 6 करो 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई 6 करो 6 आ जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई 6 करो 36 आ जाएगा, 36 को मल्टीप्लाई 2 1 6 करो 6 करो 2 1 6 आ जाएगा. And formula for the exponential sequence is a value is the very first term, r is the ratio, देखो ये इसको r कहते हैं, power n minus 1. Now you need to simplify it further. ये 6 power n minus 1 है, power minus 1, बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. ये 6 power n minus 2. Now we need to expand and simplify this. तो देखो बेटा, first you are going to multiply the first two brackets. पहले इनको मल्टीप्लाई करवा दो. x multiplied by x is x square. x multiplied by minus 3 is minus 3x. Then 4 multiplied by x is plus 4x. 4 multiplied by minus 3 is minus 12. Minus 3x plus 4x is 1x. अब देखो इनको मल्टीप्लाई करवा दो. x square multiplied by 3x. 3x cube. X square multiplied by minus 1 is minus x square. Now this x going to be multiplied by 3x is 3x square. X multiplied by minus 1 is minus x. Now this minus 12 is going to be multiplied by 3x, minus 1 multiplied by minus 1 is plus 12.
So we're going to have 3x cube plus 2x square minus 37x plus 12. After expansion and simplification, we got this answer, which is 3x cube plus 2x square minus 37x plus 12. अच्छा, over here we had this mistake. यहाँ पर बेटा ये 5 square था. So this and this was cancelled. It was left over is 5 cube. So this was 125 x power 9. Whatever. 9 question number D part 1 says show that this expression will be simplified to 2x square plus x minus 3. तो देखो बेटा यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया and that will be x minus 2. इसलिए 3x plus 5 के साथ मिला हो गया x minus 2 से, और ये 7 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया x. ठीक है. Now you can see कि बेटा अब सिंप्लीफिकेशन करनी है. 3x multiplied by x is 3x square. 3x multiplied by minus 2 is minus 6x. 5 multiplied by x is 5x. 5 multiplied by minus 2 is minus 10 plus 7. और ये x minus 2 अब इधर राइट हैंड साइड पे आकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये देगा 3x square minus x minus 3 minus 10 plus 7x minus 3, और ये देगा x square minus 2x. 3x square minus x square 2x square हो गया, माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स हो गया, माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो देखो वही चीज आ रही है जो उसने प्रूफ करने के बोली थी. यस, वी आर गेटिंग द सेम थिंग. काम से चल रहा है. सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन. अब देखो यहां पर स्पेसिफाई करा हुआ है कि फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है. यू डोंट हैव टू पुट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व दिस. तो देखो यहां पर आई एम गोइंग टू यूज ब्रेक द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइजेशन कर रहा हूं. माइनस 2x प्लस 3x में ब्रेक कर दिया. यू गॉट 2x कॉमन. अगर मेरे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे होंगे तो इट मींस मैंने सही फैक्टराइजेशन करी है. दैट्स व्हाट वी डू. x minus 1 or 2x plus 3 is equal to 0. So you got the x value, x minus 1 equal to 0. You got the x value 1. You got 2x plus 3 is equal to 0. You got x value as minus 3 by 2. ठीक है. Then it says a solid cylinder has the base radius x and height 3x. The total surface area of the cylinder is same as the total surface area of solid hemisphere. इसने का सवाल पहले भी इसने पूछा हुआ है, which is equal to 5y. अब देखो द मेन थिंग इज ये सॉलिड की बात कर रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सॉलिड सिलेंडर में ना कर्व सरफेस एरिया भी आता है. बेस एरिया और टॉप सरफेस एरिया सब आ जाता है. कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच. एंड दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर. तो रेडियस वाज x, हाइट वाज 3x, रेडियस वाज x स्क्वायर. तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 6 पाई एक्स स्क्वायर. दिस इज 2 पाई एक्स स्क्वायर. ये देगा 8 पाई एक्स स्क्वायर. सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया. हेमिस्फेयर में क्या होता है? सॉलिड हेमिस्फेयर इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई स्क्वायर, और इसमें फ्लैट सरफेस एरिया होता है विच इज सर्कुलर पाई स्क्वायर. तो देखो 3 पाई स्क्वायर और इसका रेडियस कितना है 5y. So it will become 5 square is 25, 25 into 3, 75 pi y square. So I'm going to use both of these in a relationship. उसने बोला हुआ है they both are same. 8 pi x square is equal to 7 pi y square. You want to make x square as a subject. देखो pi से pi तो cancel हो जाएगा.
75y square upon 8. This is going to be x square. So we got the relationship which they were asking for. Now, in question number 6, ABCD is a quadrilateral with AB 10.4 and AD is 6.5. That is already mentioned in the question. Angles are mentioned in the question 64 degree, 26 degree, 42 degree. Show that BD is 9.55 centimeter. Correct to do decimal place. So see, we need to find out this BD length. तो देखो हमारे पास ये non-radical triangle है. We can use cosine rule for this. So BD square is equal to 6.5 square, 10.4 square, 2 multiplied by 6.5. Cos 64 degree. You're going to find out the square root of all this value. First, find out this value 6.5 square plus 10.4 square minus 2 times 6.5, 10.4 cos 64. Whatever the answer is, take the square root. It is 9.55 सेंटीमीटर. करेक्ट टू. देखो पहले मैंने 3 sin फिगर में राउंड ऑफ करना था, 3 sin फिगर में लिखना था, उसके बाद मैंने 3 डेसिमल प्लेस में लिखना था, उसके बाद 2 डेसिमल प्लेस में मैंने राउंड ऑफ कर लिया, क्योंकि उसने बोला हुआ 2 डेसिमल प्लेस में फाइनल आंसर देना है. पहले मुझे 3 डेसिमल प्लेस में लिखना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू राउंड इट ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस. Show that the angle BCD is 112. BCD angle. Asking about this angle. It is 112. So देखो इस triangle में we got 2 angles already. So sum of the interior angles of the triangle is 180 degree. तो 180 में से 42 और 26 माइनस कर दो. That is 112. दिखा दिया हमने. Now we need to find out the CD length. ये आपने CD की लेंथ मालूम करनी है for the second part. So we can use cosine rule for this. क्यों? Sine rule for this. देखो we know the value of BD which is 9.546. तो देखो BD की लेंथ और उसका अपोजिट एंगल पता है, एक पेयर पता है मुझे, और CD की लेंथ और उसका अपोजिट एंगल मुझे पता है. इस पेयर में साइड नहीं पता मुझे. सो आई कैन यूज CD over sine 42 and 9.546 divided by sine 112. Side divided by sine of the opposite angle. So your CD value is 9.546 multiplied by sine 42 divided by sine 112. It is going to be 6.889. 6.89 is going to be your centimeter. Do write the unit. Centimeter is going to be your final answer here. Find a shorter distance from D to AB. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि आपसे D to AB शॉर्टर डिस्टेंस मालूम करने के लिए कह रहा है. देखो शॉर्टर डिस्टेंस ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब जब वो बोल रहा है D to AB शॉर्टर डिस्टेंस मालूम करके दिखा दो, इट्स मीन कि आपने D से AB तक एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर लाइन हो.
अब ये परपेंडिकुलर तो नहीं लग रही, लेट अस ड्रॉ लाइक दिस। नाउ इट इज परपेंडिकुलर है, डू मेंशन, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, यहां पर दिस इज परपेंडिकुलर। Since we got a right angle triangle here, opposite value is 6.5, angle is given to you. We need this d2x, which is, sorry, 90 degree opposite is hypotenuse, and dx is opposite. So sine theta, opposite over hypotenuse, sine 64, opposite over hypotenuse is 6.5. 6.5 multiplied by sine 64, 5.842, correct to 3 sin figure, 5.84 centimeter, correct to 3. Okay, in question number 7, they are saying solve. Solve means find out the variable value. तो यहाँ पे देखो 3x माइनस एट इक्वल्स टू 6 माइनस 4x लिखा हुआ है, x की वैल्यू मालूम करनी है। इट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो मैंने 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर लेने दिया और 4x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आया, तो ये बन गया प्लस 4x, और माइनस एट ऑन द राइट साइड प्लस प्लस एट बन गया। ये हो गया 7x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू, क्योंकि 7 1 7 7 टू द 14 कैंसिल हो जाएगा। देन इट सेज फैक्टराइज करें। फैक्टराइज में बेटा द वेरी फर्स्ट रूल इज टू टेक कॉमन। तो दोनों में देखो हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, 5 और a कॉमन आ रहा है, सो इट बिकम 2a + 1। मजीद फैक्टराइज नहीं हो रहा, हमने बस कॉमन से फैक्टराइज फॉर्म कर ली, कॉमन वाले रूल से। तो 5a इंटू 2a + 1 इज गोइंग टू बी अ फैक्टराइज फॉर्म। या फिर ये कह रहा है फैक्टराइज फुली। ये एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर थोड़ा सा डिफरेंट फैक्टराइजेशन में आ गया तो। देखो यहां पर फैक्टराइज फुली लिखा हुआ है, आपने ये नहीं करना कि आप इसको एक्सपेंड करने लग जाए, इसको एक्सपेंड नहीं करना यहां पर अभी आपने। अगर आप गौर से देखो तो ये बना हुआ है a² माइनस b²। फैक्टराइज बोल रहा है तो सबसे पहले कॉमन लेना, फॉर्मूला आइडेंटिटी रूल और मिडिल टर्म ब्रेकिंग दिमाग में आनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा, मैंने बोला यार a² माइनस b² का फॉर्मूला, दिस इज योर a वैल्यू माइनस b²। तो देखो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 a माइनस b और फिर a प्लस b। 2x माइनस 3 और ये +3 हो जाएगा। b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2x माइनस 3 है। a माइनस b, a प्लस b। ये 2x माइनस 6 हो गया, ये 2x यहां पर एज वेज रह गया। अगर आप चाहो तो यहां पर 2 मजीद कॉमन ले लो, तो ये x माइनस 3, और चाहो क्या कि आप जब कॉमन आ रहा था तो कॉमन लें उसको। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4x हो गया, इसको पहले लिख दिया मैंने, और x माइनस 3 ब्रैकेट को बाद में लिख दिया। अब देखो ये कंप्लीट फैक्टराइज फॉर्म है, इसमें देखो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ब्रेक हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया 4x इंटू x माइनस 3, द फैक्टराइज फॉर्म। नेक्स्ट इन पार्ट डी द क्वेश्चन रिलेटेड टू फंक्शंस। सबसे पहले बोला है f(4) निकालो। देखो ये रहा आपके पास फंक्शन ऑफ x, इसमें x की जगह 4 पुट करना है आपने। तो ये 4 4 16, 16 माइनस 1 15 हो गया। तो देखो ये आपके पास x की वैल्यू, f(4) की वैल्यू 1/15 आ गई। यहां पर g(2) लिखा हुआ है, तो पहले आप g(2) निकाल लो। व्हाट इज g(2)? देखो यहां पर g(2) क्या है, 3 की पावर 2, 9 हो गया। फिर g(2) निकालना है, इसका मतलब वापस से g वाले फंक्शन में g(2) की वैल्यू
यानी ये हो जाएगा g(9), ये इनपुट कर दें आप, तो जाएगा 3 की पावर 9। अब 3 पावर 9 कैलकुलेटर से आराम से आ सकता है। 3 पावर 9 इट इज 19683। इसको राउंड ऑफ नहीं करना, एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है आपने। फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन g ऑफ के f(7) के बराबर है। तो व्हाट इज g ऑफ के? देखो g ऑफ के हो क्या जाएगा, g ऑफ के होगा 3 की पावर k, x की जगह k पुट दे दिया मैंने। f(7) क्या हो जाएगा, आपने x की जगह फंक्शन ऑफ x में x की जगह 7 पुट कर देना है। 7 for the 28, 28 minus 1, 27 हो गया। 27 होगा 3 का क्यूब। 3 को बेटा न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगा ताकि बेसिस सेम कर सकूं। जब बेसिस सेम होंगी ना, तो इंडाइसिस का रूल ये है कि आप पावर्स को आपस में इक्वेट कर सकते हो। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इज -3 है। ओके, इन क्वेश्चन में 8 it says a baker decorates x small cakes and y large cakes. In one day he decorates not more than 16 small cakes. तो देखो, नॉट मोर देन 16 स्मॉल केक्स, इससे आपको एक्सप्रेशन बनानी है, एक इनक्वालिटी क्रिएट करनी है। तो स्मॉल केक्स को हम लोग कहते हैं, वन ऑफ द इनक्वालिटीज दैट शो दिस इंफॉर्मेशन इज x इज लेस देन इक्वल टू 16। स्मॉल केक्स को हम क्या कहते हैं, x, और उसने बोला नॉट मोर देन 16 स्मॉल केक्स, यानी वो कितने प्रिपेयर कर रहा है, या तो 16 कर रहा है या उससे कम कर रहा है, नॉट मोर देन 16। तो यहां पर देखो x इज लेस देन इक्वल टू 16, इसकी एक इनक्वालिटी यहां पर क्रिएट हो गई। लेकिन उसके बाद वो क्या कह रहा है आपसे, लेस देन 10 केक्स, लेस देन 10 लार्ज केक्स। तो लार्ज केक क्या है, लेस देन 10 है, यानी y की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, y रिप्रेजेंट लार्ज केक्स, तो y इज लेस देन 10। मोर स्मॉल केक्स देन लार्ज केक्स, मोर स्मॉल केक देन लार्ज केक्स, x केक्स यानी स्मॉल केक्स आर मोर देन लार्ज केक्स, तो x इज ग्रेटर देन y। मोर स्मॉल केक्स देन लार्ज केक, लार्ज केक के मुकाबले में x ज्यादा है, y के मुकाबले में x ज्यादा है, लार्ज केक के मुकाबले में स्मॉल केक ज्यादा है। द टोटल ऑफ नॉट मोर देन 24 केक्स, यानी इन दोनों का टोटल x प्लस वाई इज नॉट मोर देन 24, यानी ये ग्रेटर देन 24 नहीं है, या तो ये 24 है या उससे लेस है। नॉट मोर देन बोला हुआ है, यानी ग्रेटर देन नहीं है, बस लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। तो ये हमारे पास देखो सारी इनइक्वालिटीज यहां पर क्रिएट हो गई। अब देखो ये पार्ट बी में, ऑन द ग्रिड ड्रॉ 4 स्ट्रेट लाइंस एंड शेड द अनवांटेड रीजन टू शो दीज इनइक्वालिटीज। अब देखो यहां पर दे आर सेइंग शेड द अनवांटेड रीजन and label the region R which satisfy the 4 inequalities. तो हमें अनवांटेड रीजन को शेड करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो यहां पर 4 इनइक्वालिटीज हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 16 को मिलाकर। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यू हैव x इज इक्वल टू 16 एक लाइन है, y इज इक्वल टू 10 एक लाइन है, x इज इक्वल टू y एक लाइन है, और x प्लस वाई इक्वल टू 24 एक लाइन है। सारी लाइंस हैं हमारे पास जो हमें पहले बनानी है। x इक्वल टू 16 लाइन कैसे बनेगी, देखो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 16 वाली लाइन है। देखो यहां पर थ्रू आउट x की वैल्यू क्या है, 16 है, और वर्टिकल लाइन। ये देखो y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन, लेकिन देखो मैं y इक्वल टू 10 वाली लाइन को डॉटेड बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि y लेस देन लिखा हुआ है, यहां पर लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ। फिर यहां पर x इज ग्रेटर देन y, या इसको आप यूं भी रीड कर सकते हो
y इज ग्रेटर देन x, तो आप सबसे पहले y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर लो, लेकिन वो लाइन आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे क्योंकि y इज ग्रेटर देन x लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, इक्वल टू नहीं है ना। तो y इक्वल टू x वाली लाइन कौन सी है जो कि बिल्कुल मिड से जा रही है, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, देखो पॉइंट टू पॉइंट जा रही है, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 10, 10। तो मैंने ये लाइन क्या बनाई, डॉटेड लाइन बनाई है। इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 24, तो x प्लस वाई इक्वल टू 24 कौन सी लाइन है, देखो लाइन बनाना आना चाहिए, और ये लेस देन इक्वल टू 24 है ना, तो ये सॉलिड लाइन बनेगी। आप यहां पर x की जगह 0 पुट करो, y किलो 24 आ जाएगी। आप y की जगह 24, y की जगह 0 पुट करो, x किलो 24 आ जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए जिनसे आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, एक 0,24 और एक 24,0, और ये लाइन सॉलिड ड्रॉ होगी हमारे पास, क्योंकि बेटा आपके पास लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है। अब हमें रीजन आर निकालना है और अनवांटेड रीजन को शेड करना है। अच्छा, ये काम आप, यानी ये काम आप हर लाइन को ड्रॉ करने के साथ साथ भी कर सकते थे। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, x इज इक्वल टू 16, ये वाली लाइन है, मेरे पास लेस देन इक्वल टू 16 है, यानी मैं लेफ्ट साइड में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं राइट साइड पे शेडिंग करूंगा, क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड वांटेड रीजन है और राइट साइड मेरा अनवांटेड रीजन है। लेस देन का मतलब है लेफ्ट साइड, तो मैं लेफ्ट साइड मेरा वांटेड रीजन है, तो मैं अनवांटेड रीजन को शेड कर रहा हूं, वांटेड रीजन को शेड नहीं करेंगे। फिर y लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन 10, ये y लेस देन 10, मैं इसके डाउनवर्ड इंटरेस्टेड हूं, तो बेटा मेरा डाउनवर्ड वांटेड रीजन है, तो मैं इसके अपवर्ड शेड करूंगा, दैट इज माय अनवांटेड रीजन। कुछ तो शेड हुआ ऑलरेडी। फिर y इज इक्वल टू x, y इज ग्रेटर देन x, यानी मैं इसके अपवर्ड मेरा वांटेड रीजन है, सॉरी y लेस देन x, मैंने यहां पर इसको लिखना था y लेस देन x, इसको x ग्रेटर देन y लिख दो या y लेस देन x लिख दो, बात देखिए। तो y की तरफ से रीड करते हैं, y लेस देन x का मतलब है मैं इसके डाउनवर्ड इंटरेस्टेड हूं, ये मेरा वांटेड रीजन है, तो मैं इसके अपवर्ड शेडिंग कर दूंगा। इसके अपवर्ड बहुत सारा रीजन शेड तो हुआ है, सिवाय बस इस पोर्शन के, तो मैं इसको भी शेड कर देता हूं। देन वी गॉट दिस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 24, देखो ये x y इक्वल टू 24 है, मैं लेस देन का मतलब है इसके डाउनवर्ड इंटरेस्टेड हूं, इस लाइन के डाउनवर्ड मेरा वांटेड रीजन है, तो इसके अपवर्ड में शेडिंग कर दूंगा, देखो ये शेडिंग हो जाएगी यहाँ। तो ये मेरा वांटेड रीजन निकल कर आ गया, जिसको मैं मजीद हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने। अच्छा, जो डॉटेड है वो डॉटेड ही रहना चाहिए। तो ये रीजन आर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे जो कि इन चारों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ दे आर सेइंग इन पार्ट सी द बेकर अर्न्स $8 फॉर डेकोरेटिंग अ स्मॉल केक एंड $12 फॉर डेकोरेटिंग अ लार्ज केक। यूज योर डायग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमाउंट the bakers can earn in one day by decorating these cakes। देखो दिस इज समथिंग कि आपको थोड़ा सा यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बहुत बेसिक लेवल की है, इतनी ज्यादा भी नहीं है। $8 फॉर डेकोरेटिंग स्मॉल केक्स, अगर x इज द नंबर ऑफ स्मॉल केक्स एंड y इज द नंबर ऑफ लार्ज केक्स, राइट, तो अगर आप $8 स्मॉल केक को चार्ज कर रहे हो, तो अगर एक एक केक डेकोरेट करोगे तो आप कमाओगे 1 into 8 $8। अगर दो केक डेकोरेट करोगे तो 2 into 8 $16 कमा लोगे, राइट। सिमिलरली अगर आप लास्ट की बात करते हो तो एक केक डेकोरेट करने के लिए $12 चार्ज कर रहे हो,
तो 12 into y, ये लार्ज केक से अमाउंट जो आपको रिसीव होगा, जो अर्निंग आपको रिसीव होगी, वो 12y हो जाएगी। यानी अगर आपने एक लार्ज केक डेकोरेट करा तो 1 into 12, $12 आपने अर्न कर लिए। अगर आपने दो लार्ज केक डेकोरेट करे तो 2 into 12, $24 आपने अर्न कर लिए। और दोनों को जब डेकोरेट कर रहे हो तो 8x + 12 इसकी एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है। अब आपके पास यहां पर ये वो एक्सप्रेशन है जो कि आपको बता रही है कि हाउ मच यू विल अर्न अगर आपने एक्स, यानी एक स्मॉल केक डेकोरेट करा और एक लार्ज केक डेकोरेट करा, तो 8 into 1 8, 12 into 1 12, आपने टोटल $20 कमा लिए। अगर आपने दो स्मॉल केक डेकोरेट करे और एक लार्ज केक डेकोरेट करा तो 8 to the 16, 16 + 12, $28 आपने अर्न कर लिए। अब वो आपसे कह रहा है यूज योर डायग्राम, फाइंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बेकर्स कैन अर्न इन 1 day बाय डेकोरेटिंग दीज केक्स। कह रहा है आप अपनी डायग्राम में बताओ। देखो ये आपका वो रीजन है जो कि बता रहा है, जो कि इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा था। और ये इनइक्वालिटीज क्या बता रही हैं कि अब बेकर्स डेकोरेट, ये इनइक्वालिटीज हमें क्या बता रही हैं? ये इनइक्वालिटी हमें बता रही है बेकर डेकोरेट्स इन 1 day, ही डेकोरेट्स, ये सारी कितने वो डेकोरेट कर रहे हैं केक्स, ये वो रीजन बता रहा है। यानी एक्स यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ मेनी स्मॉल केक्स उसने डेकोरेट करे, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ मेनी लार्ज केक उसने डेकोरेट करे। तो ये वो रीजन है जो कि बता रहा है कि उसने कितने केक्स डेकोरेट करे। अगर आपको अपनी अर्निंग की सबसे ज्यादा वैल्यू चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए कि कितना ज्यादा वो अर्न कर सकता है, तो बेटा आप यहां पर एक्स और वाई की सबसे बड़ी वैल्यू पिक करेंगे। जितना एक्स बड़ा होगा, जितनी वाई की वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब आपने उतने ज्यादा केक्स डेकोरेट करे और उतनी ज्यादा अमाउंट आपने अर्न करी होगी फिर, क्योंकि यहां पर एडिशन ऑपरेशन है। तो जितना एक्स ज्यादा होगा, जितना वाई ज्यादा होगा, उतना इनका सम ज्यादा होगा। तो देखो एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, मैं यहां पर चेक कर लेता हूं। देखो अगर आप एक्स की वैल्यू 15 पर, वाई की वैल्यू 9, ये मैक्सिमम है। एक्स की वैल्यू 15 पर, वाई की वैल्यू 9, ये मैक्सिमम है। आप कोई और पॉइंट भी देख सकते हो, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर लो। जैसे मैं बोल रहा हूं एक्स की वैल्यू 15 पर, वाई की वैल्यू 9, आप इस पे अर्निंग चेक कर लो। यानी इस पे अर्निंग हो जाएगी 8 into 15, 12 into 9। तो 8 into 15 इज, इट इज $228। आप कोई और एक्स की वैल्यू चेक कर सकते हो। लेट से आपने ये देख लिया कि भाई यहां पर कोई सी भी वैल्यू चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 16, एक्स की वैल्यू 16, वाई की वैल्यू 8। इस पे चेक कर लो तो बेटा ये हो जाएगा 8 into 16, 12 into 8। देखो बेटा इससे मैक्सिमम अमाउंट निकल के नहीं आ रही। 8 into 16 + 12 into 8, इससे आ रहा है $224। तो हमें मैक्सिमम अमाउंट $228 आ रही है। तो बेटा वी कैन से कि आपके पास आप मैक्सिमम अर्निंग $228 कर सकते हो बाय डेकोरेटिंग 15 स्मॉल केक्स एंड 9 लार्ज केक्स। देखो बेटा इन क्वेश्चन में 9 part 8 says OAB is a sector of the circle, center O, radius 17. OCD is a sector of the circle, center O, radius 10. OC and ODB are straight line angle AOB 60 degree. The perimeter of the shape ABCD can be written in the form of A pi plus B centimeter. Find the value of A and the value of B. तो देखो यहां पर पैरामीटर A pi plus B की फॉर्म में है, तो हमें भी पैरामीटर निकालना है ताकि A और B से कंपैरिजन करके मैं आंसर निकाल लूं। तो देखो मैं पैरामीटर किस तरह निकालूंगा, मैं पैरामीटर किस तरह निकालूंगा शेडेड रीजन का।
देखो मुझे ये आर्क लेंथ चाहिए CD की, तो फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r, स्मॉल रेडियस 10 हो जाएगा। टेन पाई बाय 3 हो गया ये। और देखो ABR, इसकी लेंथ चाहिए मुझे, तो ये भी 60/360, लेकिन यहां पर रेडियस कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, आर्क लेंथ के लिए रेडियस कितना हो जाएगा यहां पर 17। तो 60 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 पाई बाय 3 हो गया। तो आपने ये दोनों आर्क लेंथ तो ऐड कर ली, लेकिन बेटा ये रेडियस भी तो, ये AC की लेंथ और AB की लेंथ ये कितनी हो जाएंगी। तो पेरीमीटर में देखो बेटा, मैंने 10 पाई बाय 3, 17 पाई बाय 3, और AC की लेंथ 17 - 10 7, ये भी 7। तो देखो 10 पाई बाय 3 प्लस 17 पाई बाय 3, 27 पाई बाय 3, 9 पाई प्लस 14 हो जाएगा। अब देखो अगर आप कंपैरिजन करो तो A की वैल्यू 9 आ रही है पाई का कोफिशिएंट, और B की वैल्यू बेटा हमारे पास 14 आ रही है। ठीक है ना। Now, in part B, they're saying the diagram shows a regular hexagon. The area of the hexagon is 127.3 centimeter square. Show that the length of one side of the hexagon is 70.0 centimeter, correct to one decimal place. अब देखो ये रेगुलर हेक्सागोन है। अब ये बात आपने समझनी है जरा गौर से। रेगुलर हेक्सागोन में बेटा आपके पास अगर मैं डायगोनल्स ज्वाइन करता हूं, देखो सेंटर में हमारे पास 6 एंगल्स बन रहे हैं, ये सारे एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि रेगुलर है ना। और ये बराबर किसे होंगे, 360 डिवाइड बाय 6, ये पूरा 360 इन 6 में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप 360 डिवाइड बाय 6 करते हो तो गेट 60 डिग्री। तो एक एंगल, हर एक एंगल 60 डिग्री है। मैं एक को कंसिडर कर लेता हूं। दूसरा, आपके पास एरिया 127.3 है, तो मैं एक ट्राइंगल का एरिया अगर निकालता हूं, जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहां पर, उसको डिवाइड बाय 6 कर देता हूं, तो एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 127.3 डिवाइड बाय 6, 21.216। ठीक है। अब आपके पास यहां पर एरिया आ गया। अच्छा याद रखें, ये जो आपके पास एरिया आया है 21.216, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन थीटा। तो मैं कहता हूं ये A और ये B दोनों की लेंथ बराबर होंगी, क्योंकि बेटा आपके पास ये क्या है, रेगुलर शेप है, रेगुलर हेक्सागोन है, ये A और B की वैल्यू बराबर होगी, दोनों को A कह देता हूं बल्कि। तो जगह एरिया 21.6 हाफ A साइन 60। इससे बेटा मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी, यानी 21.26216 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय साइन 60। तो ये A स्क्वायर आ जाएगा 48.99, और जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो बेटा वो आ जाएगा 6.999। अब बात दरअसल ये है कि उसने तो लेंथ मांगी थी वन ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागोन विच इज दिस वन। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये भी A के बराबर होगा। क्यों? देखो बेटा गौर से देखो, ये हमारे पास एक, अगर मैं कहता हूं ये 60 डिग्री है,
तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि बेटा ये हमारे पास दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। तो 180 में 60 माइनस करो 120, दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्री, दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्री। इसका मतलब तीनों एंगल्स बराबर हैं, ये इक्वल ट्राइंगल है। अगर ये लेंथ ए है तो बेटा ये लेंथ भी ए होगी और ये लेंथ भी ए होगी। तो बेटा आपके पास लेंथ निकल कर आ रही है 6.99, और क्योंकि उसने 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करने के लिए बोला हुआ है, तो देखा 7.0 सेंटीमीटर, ये बेटा मैंने यहां पर शो करके दिखा दिया। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2, कह रहे थे हेक्सागोन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म ऑफ लेंथ 10। ऊपर जो आपने हेक्सागोन देखा वो ये रहा, इसका एरिया भी इसने दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ 127.3। कह रहे इसका वॉल्यूम करके दिखा दो। तो ऐसी किसी भी शेप जिसका कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन हो, ये प्रिज्म है ना, इसका कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन होगा फ्रंट टू बैक। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, 127.3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ इज 10 इज ऑलरेडी गिवन, तो जाएगा 1273 एग्जैक्ट आएगा। इसको आप राउंड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर 4 सेंट फिगर में या 5 सेंट फिगर में कोई वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है तो उसको राउंड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म निकालना है, तो देखो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे फ्रंट और बैक का एरिया आ जाएगा, प्लस लेंथ 10, पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या है, ये पूरी लेंथ, पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इससे बेटा जो लेटरल सर्फेसेस हैं, जो साइड में सर्फेस है, उनका एरिया सबका निकल कर आ जाएगा। तो ये 6 की 6 लेंथ बराबर हैं, ये सब ए ए न्यू कर लेते हैं आपके लिए। तो 2 टाइम क्रॉस सेक्शन एरिया 127.3, लेंथ हो गया 10, और सारी ए लेंथ है, और ए लेंथ हमने निकाली है 6.99। मैं इनको 6 मल्टीप्लाई बाय ए कर रहा हूं, यानी 6.999, 7 नहीं लिख रहा, मैं वर्किंग वैल्यू लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 127.3 प्लस 10 इंटू 6 इंटू 6.999, ये हो जाएगा बेटा 674.54। ऑब्वियसली इसकी ए की लेंथ तो हमने राउंड ऑफ करी हुई थी, तो इसको आप 3 सेंटीमीटर में राउंड ऑफ कर सकते हो, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, ये 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आप टोटल सर्फेस एरिया निकाल सकते हो। मैंने 3 सेंटीमीटर में राउंड आउट करा, फर्स्ट 6, सेकंड 7, थर्ड पे 4 लिखा हुआ था, 4 के बाद नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो 4 में हम 1 ऐड कर देंगे, एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो इन दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज द पॉइंट 6,2, बी इज द पॉइंट 3-4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 2, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो देखो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 4.5। डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, एग्जैक्ट आ रहा है ये 4.5, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 + -4, तो 2 + -4 -2/2, -2/2 -1 हो गया। तो बेटा 4.5 -1 इज गोइंग टू बी योर आंसर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 - x1 होल स्क्वायर, किसी एक पॉइंट को x1 y1, दूसरे को x2 y2 कह दो। 3 - 6 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, तो y2 है -4, y1 है 2। यू कैन हैव द ए बी लेंथ -3 का स्क्वायर 9, 3 - 6 -3 -3 का स्क्वायर +9, -4 -2 -6 -6 का स्क्वायर +36, एंड 9 + 36 इज √45। √45 को बेटा अगर सर्ट फॉर्म में अगर आप लिखें तो यू विल फाइंड द आंसर, क्योंकि ये सर्च फॉर्म में पूछ सकता है ना आपसे। अब तो सर्ट भी हमारे टॉपिक में इंक्लूडेड है, तो क्या बोल दे कि भाई सर्ट की फॉर्म में आंसर रहने दो, तो √45 होता है 3√5। और अगर आपने डेसिमल में दे दिया कैलकुलेटर वर्जन में आंसर,
यानी अगर आपने इसका आंसर 6.70 दे दिया, 71 राउंड ऑफ करके मैं बता रहा हूं आपको, तब भी सही आंसर है आपका। कैलकुलेटर वर्जन पेपर है ना, दे सकते हैं आप। द इक्वेशन ऑफ द लाइन 4x प्लस cy इक्वल टू -12 -12 इक्वल टू 0 कह रहा है इसका, इस लाइन का ग्रेडियंट मालूम करके दिखा दो। तो अगर किसी भी लाइन का ग्रेडियंट मालूम करना है तो सबसे पहले बेटा आपने उसको y इक्वल टू mx फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल y हो, तो इस वजह से बेटा मैं 4x को राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूं, आपका x वेरिएबल राइट हैंड साइड पर हो और कांस्टेंट नंबर भी राइट हैंड साइड पर हो। अब पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से डिवाइड करा दिया, क्योंकि बेटा y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये -4/3x +4 हो जाएगा। तो यहां पर देखो, अगर आप कंपैरिजन करो तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ऑन कंपैरिजन m की वैल्यू बेटा -4/3 आ रही है, दैट इज योर ग्रेडियंट। फिर कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस y एक्सिस। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। विद लाइन वेयर क्रॉसेस y एक्सिस इट मींस वेयर x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो आपने x की 0 पुट करना है। 0 + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। 3y = 12, 3 1 जा 3 4 12, y की वैल्यू 4 आ गई। तो 0,4 इज योर पॉइंट। क्रॉसेस द वाई एक्सिस, मतलब जहां वो वाई एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं वहां पर एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है? 0 है ना। इस वजह से बेटा हमारे पास यहां पर एक्स वैल्यू 0 को पुट करके मैंने वाई की वैल्यू फाइंड आउट। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन इट सेज पार्ट 3 लाइन पी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। ये लाइन एल है, इसका डेटा देखो ये निकलवाया हुआ इसने, लाइन एल का ग्रेडियंट है जिसने निकलवाया हुआ यहां पर। तो लाइन पी का ग्रेडियंट -4/3 है लाइन एल का। तो लाइन पी का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो लाइन पी का ग्रेडियंट हो जाएगा बेटा नेगेटिव रेसिप्रोकल। -4/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा 3/4। अगर 4/3 लिखा हुआ है तो यहां पर 3/4 लिखेंगे, वो नेगेटिव में है तो बेटा ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। देन दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 6,5। तो मैं लाइन की इक्वेशन में सबसे पहले तो ग्रेडियंट पुट कर लेता हूं। लाइन पी की इक्वेशन निकालनी है मुझे, तो मैंने इसकी जगह ग्रेडियंट पुट कर लिया। अब सी निकालने के लिए उसने ये पॉइंट दिया हुआ है 6,5। So I'm going to put 5 instead of y. I'm going to put 6 instead of x. Now I'm going to simplify it. आप चाहो सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू बस निकाल लो यहां पर। 2 2 जा 2 3 जा देखो 5 इज इक्वल टू 9/2 प्लस c। 5 - 9/2 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू देगी बेटा 1/2। You're going to put the c value in the original equation जहां पर आपने ग्रेडियंट पुट कर चुके थे। तो जगह y इक्वल टू 3/4x प्लस 1/2। अब आपको उसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, उसने बोला हुआ है y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में ही आपने जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए सेज द पॉइंट -1,6 लाइज ऑन द कर्व। ठीक है, dy/dx इज -4x³ -9x² + 5। शो दैट -1,6 इज अ स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखो, अगर आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना होता है ना, तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए dy/dx इक्वल टू 0 रखना पड़ता है फॉर स्टेशनरी पॉइंट, दैट इज द कंडीशन। तो मैंने dy/dx को इक्वल टू 0 रखा। 4 -4x³ -9x² + 5 इज इक्वल टू 0। अब या तो मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करूं, जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें इस क्यूबिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म आ रही है। हमारे कोर्स में जो क्यूबिक इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं होगी, इसमें कांस्टेंट टर्म है। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, दैट इज नॉट पार्ट आउट ऑफ सिलेबस। आप इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है। ये एड मैथ्स है या फिर ए लेवल मैथ्स है। तो सर हम किस तरह पर प्रूव करें? देखो, अगर मैं इसको सॉल्व कर सकता होता तो मैं इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू मालूम कर लेता, और एक एक्स की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट की -1 आ जाती। तो मैं समझ जाता कि भाई हमारा एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है -1,6। लेकिन अब यहां से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? यही एक्स की वैल्यू बेटा यहां पर पुट कर दूंगा। यही एक्स की वैल्यू यहां पर
पुट इन कर दूंगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई तो इसका मतलब मेरा स्टेशनरी पॉइंट -1 है, जिस पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, +5 ये देगा +4 -9 +5, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड बराबर आ रही है। इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि बेटा आपके पास ये स्टेशनरी पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है। पार्ट बी सेज अ डिफरेंट कर्व हैज इक्वेशन y equal to 2x cube minus 6x plus 8, calculate the gradient of the tangent to this curve at point -2, 2। आपने किसी कर्व का टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालना है या कर्व का ग्रेडियंट निकालना है किसी पॉइंट पर, तो बेटा आप कर्व का dy by dx निकालें, कर्व का डेरिवेटिव निकालें। तो लेफ्ट हैंड साइड पर y का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज गोइंग टू बी dy by dx। 2x क्यूब का डेरिवेटिव, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट, -6x का डेरिवेटिव -6 हो जाएगा, x की पावर 1 है, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओ, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कराओ, तो x की पावर 0 हो जाएगा, वो x की पावर 0 1 होता है, तो -6 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव 0 हो गया। अब आपने ग्रेडियंट निकालना है ना, तो दैट इज द ग्रेडियंट किस पॉइंट पर, -2, 2 पर। तो इसमें x की वैल्यू आप पुट कर दो -2, -2 का स्क्वायर 4, 6 4 24, 24 -6 इट इज 18। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व। तो देखो आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है इस कर्व का, और उसका भी सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए, y कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए। तो आपने ऑलरेडी dy by dx निकाला हुआ है, यू ऑलरेडी हैव दिस dy by dx इन द प्रीवियस पार्ट। इसको आपने इक्वल टू 0 रखना है फॉर द स्टेशनरी पॉइंट एंड गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। x स्क्वायर आ रहा है बेटा 1, x के लिए +-1, दो स्टेशनरी वैल्यूज आ रही हैं, एंड जस्ट नीड टू फाइंड आउट द x वैल्यूज, दैट्स इट। ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पेपर।